जय गिरिराज महाराज की, जय गिरिधारी गौरी मठ की। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो यं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशविति नामिने अतिमर्त चरित्राय सस्त्रिनंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु नित्यलीलं विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुरे श्रीचरण कमले अधमेर अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करी परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुरे चरण कमले साष्टांग दंडवत ज्ञापन करी मंचस्थ तीन भक्तिवेंद्र माधव गोस्वामी महाराज एवं अन्यान्य त्रिदंडीपादगण सबार चरणे अधे साष्टांग दंडवत ज्ञापन करी। आजकेर आमादेर बड़ शुभ दिन, शुभ आनंद। केन आजकेर आमादेर अन्नकूट महोत्सव एकेबारे लोके बाड़ीते करे, आमरा एकेबारे गोवर्धনের निकटे जेखाने अन्नकूट उत्सव हयेछे। माधवेंद्र पुरी करेছেন, नंद महाराज এই उत्सव करेছেন, दापर जुगे नंद महाराज এই उत्सव अन्नकूट उत्सव करेছেন। कलिते आमार चैतन्य महाप्रभुर समयकालीन आमादेर माधवेंद्र पुरी जिनि चैतन्य महाप्रभुर परम गुरुदेव श्रील माधवेंद्र पुरी तिनि এই अन्नकूट उत्सव महोत्सव करेছিলেন। যাই হোক, আমি সংক্ষেপে তো 10 মিনিট মাত্র সময়। হরে কৃষ্ণ। তা 10 মিনিট মধ্যে আমাকে বলতে হবে হরে কি। মাধবেন্দ্র পুরী তিনি ছিলেন অযাচিত বৃত্তি, কারো কাছে কোনোদিন চেয়ে খাবেন না। তিনি এই বৃন্দাবন পরিক্রমা করতে করতে গোবর্ধন শৈল পরিক্রমা করে গোবিন্দ কুণ্ডের নিকটে বসে বসে সন্ধ্যার সময় নাম ভজন করছেন। এমন সময় এক বালক এসে এক ভাণ্ড দুধ নিয়ে এসে বলছেন, মাধব তুমি কার ধ্যান করছো? তুমি কি চেয়ে খেতে পারো না? আমার এই দিন মধুর বৃন্দাবনে কেউ যদি অন্ন খায় অন্ন দিয়ে থাকি, কেউ দুধ খায় দুধ দিয়ে থাকি, ফল খায় ফল দিয়ে থাকি, অযাচিত জনের আমি দিয়ে তো হার। তিনি অযাচিত ব্যক্তিকে তিনি নিজে মাথায় করে বহন করে দিয়ে আসেন। শাস্ত্রে বলেছেন, গীতায় বলেছেন, অনন্য চিন্তন্ত মাং যে জনা পর্যুপাস হতে তেসাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগ সেয়ম বহম বহম। আমি ভক্তের অন্ন আমি নিজে মাথায় করে আমি বহন করে দিয়ে আসি। ব্যাস দুধ। হরে কৃষ্ণ। ঠিক হরে কৃষ্ণ। তারপর তিনি দুধ ভাণ্ড নিয়ে এসে এক বালক এসে মাধবেন্দ্র পুরীকে ধরছে, বলে মাধব এই না দুধ খাও আর হরিনাম করো, তুমি যেতে চেয়ে খেতে পারো না, এই নাও। হ্যাঁ আমি চলি, পরে এসে আবার এই ভাণ্ডটা নিয়ে যাব। এই বলে গোপাল চলে গেলেন। মাধবেন্দ্র পুরী দুধটা খেয়ে একটু সন্ধ্যার ভোরের দিকে তন্দ্রা এসেছেন, ব্যাস একটু বৃক্ষ হেলান দিয়ে শয়ন করেছেন। হঠাৎ সেই গোপাল এসে বলছে, মাধবেন্দ্র পুরী স্বপ্নের মধ্যে বলছে, হে মাধব বহুদিন পথ আমি করি নিরীক্ষণ, কবে মাধব আসি মোর করিবে সেবন। আমি বহুদিন তোমার অপেক্ষায় আছি। দেখছেন ভক্ত নাকি ভগবানকে অপেক্ষা করে আছেন, ভক্ত কখন এসে তিনি সেবা করবেন। ভগবান নাই সেবা করে না, সেবা গ্রহণ করে না। দেখেন বহুদিন পথ আমি করি নিরীক্ষণ, কবে মাধব আসি মোর করিবে সেবন। ব্যাস সকালবেলা ঘুম হয়ে গেছেন আর বলছে আমি এই জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি, তুমি সব ভক্তদের নিয়ে আমাকে বাহির করো। এই বলে মাধবেন্দ্র পুরী ওই আনোর বলে গ্রাম আছে ওইখানে, হ্যাঁ ওইখানে সেই জঙ্গল কেটে ভক্তদের নিয়ে এই গোপাল গিরিধারী গোপাল ওই জঙ্গলের মধ্যে পড়েছিল। মাধবেন্দ্র পুরী সংস্কার করে ওই গোবর্ধন পর্বতের উপরে নিয়ে গিয়ে
তিনি অন্নকূট ভোগ করেছিলেন। জয় গিরিধারী গোপাল কি, জয় গিরিধারী গোপাল কি, অন্নকূট মহোৎসব কি। মাধবেন্দ্রপুরী কি করবেন, তাড়াতাড়ি করে বহু শীতল জল দিয়ে তিনি গোপালকে স্নান করালেন, পঞ্চগব্য দিয়ে প্রথমে স্নান করালেন। ভগবানকে স্নান করাতে হলে প্রথমে পঞ্চগব্য দিতে হয়, দধি, দুগ্ধ, ঘিত, গোময়, গোচনা। গরুর থেকে যে পাঁচটা, গাভীর থেকে যে পাঁচটা বস্তু আছে এটা হল পঞ্চগব্য। তারপরে পঞ্চামৃত, দধি, দুগ্ধ, ঘিত, মধু, চিনি, এই পঞ্চামৃত। তারপরে মহা অভিষেক, একবারে 108 ঘট জল দিয়ে এইভাবে সেই মাধবেন্দ্রপুরী গিরিরাজকে অভিষেক করেছিলেন। জয় গিরিরাজ মহারাজ কি জয়। আর তারপরে গোপাল প্রতিষ্ঠা হয়েছেন। হরে কৃষ্ণ। গোপাল প্রতিষ্ঠা হয়েছেন, তিনি কি করলেন, আপনারা উলুদ দেবে না, হরে কৃষ্ণ, উলুধ্বনি একদম দিবে না দাম। তারপর গোপাল কি করলেন, ব্যাস মা বহু ভক্তরা সব গোপাল দর্শন করতে এসছেন। কেউ চাল, ডাল, আটা, সবজি, দধি, ফল মূল, তুলসী পাতা, ফুল সব একেবারে গোপালের ইচ্ছায় বহু এসে গেছেন। গোপালের অন্নকূট চলছে, এদিকে দেখেন আমাদের রান্না বান্না চলছে ওদিকে। ঠিক এইভাবে মাধবেন্দ্রপুরী করেছিলেন, সেই তার অনুকরণে আমাদের সবকিছু করা হচ্ছে। মাধবেন্দ্রপুরী একেবারে সব 7 জন লোক শুধু অন্ন রান্না করছেন, 7 জন শুধু রুটি বানাচ্ছেন, 5 জন শাক সবজি বানাচ্ছেন। এইভাবে সব গোপালের রান্না বান্না হলো। আর মাধবেন্দ্রপুরী ভোগ লাগালেন। বহু ঘট ভরি দিল সুবাসিত জল, আর বহুদিনে ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল। হরে কৃষ্ণ। বহু ঘট ভরি দিল সুবাসিত জল, আর বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল। হরে কৃষ্ণ। গোপাল সব খেয়ে নিচ্ছেন, কত রান্না বান্না সবজি তিনি সব খেয়ে নিচ্ছেন। গোপালের পেটটা অনেক বড় আছে। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, সেখানে আছেন। কে অনুভব করেছেন? একমাত্র মাধবেন্দ্রপুরী অনুভব করেছেন, আর কেউ অনুভব করতে পারে নাই। হ্যাঁ, সবাই দেখতে পারবে না। বলে দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ, উলুকে না দেখে সূর্যের কিরণ। দেখিয়াও না দেখে যত অভক্তের গণ, অভক্ত যারা দর্শন করতে পারবে না। শুদ্ধ ভক্ত যারা, তারা সেই ভগবানের ভোগ তারাই দর্শন করেছে, ভগবান সেবা করেছেন। তারপরে মাধবেন্দ্রপুরী কি করলেন, ভক্তদের বলে দিলেন, দাও এই অন্নকূট উৎসবে প্রসাদ, আহুত অনাহুত প্রত্যেককে যেন পায়, আবার বৃদ্ধ বনিতা সবাই যেন এই প্রসাদ পায়, সুন্দরভাবে করে দিবেন। আর মাধবেন্দ্রপুরী একটু দুধ খেয়ে আর কি 1 ভাণ্ড দুধ সেবা করে শয়ন করেছেন। ওই গোপাল আবার স্বপ্ন দিচ্ছেন। কি স্বপ্ন দিচ্ছেন? হরে কৃষ্ণ, আমার দিকে লক্ষ্য করেন, আমি কি বলছি। আবার গোপালকে স্বপ্ন দিচ্ছেন, ওই মাধব, আমি বহুদিন জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি, আমার গায়ে তাপ যাচ্ছে না, তুমি সেই নীলাচল থেকে কি মলয় চন্দন নিয়ে এসে আমার গায়ে তাল লেপ দাও, আমার গায়ে তাপ চলে যাবে। ব্যাস মাধবেন্দ্রপুরী 2 জন পূজারী ঠিক করে গোপালের সেবায় নিযুক্ত করে দিয়ে মাধবেন্দ্রপুরী পয়দল মে জায়গা, কাহা জায়গা, সেই গৌর মন্ডল নবদ্বীপ ধাম, নবদ্বীপ ধাম ত্রিভুবনে নাই, জহি অবতীর্ণ হল চৈতন্য গোসাই। অর্থাৎ নবদ্বীপ বৃন্দাবন অভিন্ন, নবদ্বীপ ভেদে বৃন্দাবন ভেদে নবদ্বীপ ধামে বাঁধিব কুটির খানি, সচির নন্দন চরণাশ্রয় করিব সম্বন্ধ মানি। হরে কৃষ্ণ। বৃন্দাবন ভেদ, বৃন্দাবন নবদ্বীপ অভেদ। মাধবেন্দ্রপুরী ওইখানে গেলেন, নবদ্বীপ শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বাসায় গেলেন, পায়ে হেঁটে চলে গেলেন। তখন তো গাড়ি ছিল না, হেঁটে গিয়ে অদ্বৈত প্রভুকে দীক্ষা দিলেন। হ্যাঁ, তিনি অদ্বৈত প্রভুকে দীক্ষা দিয়ে
উনি চললেন একেবারে সিধা। কোথায় চললেন? সেই নীলাচল। দেখুন কোথায় বৃন্দাবন আর কোথায় সেই নীলাচল। চলেছেন পায়ে হেঁটে মাধবেন্দ্রপুরী। 65 বছর বৃদ্ধ তখন তিনি সেই যাচ্ছেন ভগবানের আদেশ পালন করার জন্য। গিয়ে ওই রেমুনায় গিয়েছেন। রেমুনায় যে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ আছে ওইখানে বিশ্রাম করছেন। ওখানে 12টা পাত্রে ক্ষীর ভোগ লাগে। ওই ক্ষীর নাম হলো অমৃত কেলি। পৃথিবীতে ওই ক্ষীর কাহা নাই হয়। ওই রকম ক্ষীর ভোগ পৃথিবীতে কোথাও হয় না। 12টা পাত্র, 12টা পাত্রের মাটির পাত্রে গুনে গুনে সন্ধ্যার সময় ভোগ দেয় আর সন্ধ্যার সময় বার করে নেয়। মাধবেন্দ্রপুরী অযাচিত বৃত্তি ছিলেন যে আমি যদি একটু স্বাদ পেতাম তাহলে আমি গিয়ে ওইভাবে স্বাদ করে আমার গোপালকে বৃন্দাবনে লাগাতাম, কিন্তু কেউ দিল না। ওনার অযাচিত বৃত্তি ছিলেন। উনি গিয়ে সেই হাটচালায় গিয়ে ওখান থেকে 1 কিলোমিটার দূরে হাটচালা গিয়ে শয়ন করে আছেন। এদিকে পূজারী ওই গোপীনাথ সামনে পূজারী, ওঠো, আমার মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য আমি ক্ষীর লুকিয়ে রেখেছি ধরার অঞ্চলে। ও বিষ্ণু মায়ায় তুমি বুঝতে পারো নাই। তুমি এখনই আমাকে জাগিয়ে ওই ক্ষীর ভাণ্ড নিয়ে মাধবেন্দ্রপুরীকে দিয়ে এসো, চলে যাও। ব্যাস পূজারী সেই রাত্রি উঠে মন্দির জাগালেন। জাগিয়ে দেখছেন ধরার অঞ্চলে একটা ক্ষীর ভাণ্ড লুকানো আছে। হরে কৃষ্ণ। ভগবান কি না করে, ভক্তের জন্য ক্ষীর চুরি করে রেখেছে, তাই নাম হয়েছে ক্ষীরচোরা হরি। ভক্তের জন্য সাক্ষী দিতে গেছেন, তাই তার নাম হয়েছে সাক্ষী গোপাল। ভগবান সেই করে যেই মাগে ভিত্ত, ভক্ত ইচ্ছা পূর্তি বিনা নাই অন্য কীর্ত। ভক্তের ইচ্ছা পূর্তির জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন। কাঠ গোড়ায় গিয়ে সাক্ষী দিতে পারেন। এইরকম তার ভক্তই ভক্তবৎসল ভগবান। এই জন্য তাকে বলা হয়েছে ভক্তবৎসল ভগবান, ভক্তাধীন ভগবান। তারপরে সেই পূজারী ক্ষীর ভাণ্ড নিয়ে বলে বলে যাচ্ছেন, কে আছো কোথায় মাধবেন্দ্রপুরী, যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর পেইল চুরি। হরে কৃষ্ণ। কে আছো কোথায় মাধবেন্দ্রপুরী, যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি। হরে কৃষ্ণ। কি চুরি করেছেন? ক্ষীর চুরি করে রেখেছে। আর ব্রজে কি চুরি করেন? ননি চুরি করে, মাখন চুরি করে, বসন চুরি করে, মন চুরি করে। হরে কৃষ্ণ। তার মনোচোরা, বসন চোরা, ননি চোরা তার নাম দেয়। ব্রজগোপীরা বলে তুমি তো ননি চোরা, মাখন চোরা, বসন চোরা, মনোচোরা। ও প্রিয়া যদি মান করে করয়ে ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে হরে তার মন। বল তোরা আমাকে যা গাল দে, যা দে না কেন, ওটা আমি তোমাদের মনে করি বেদের স্তুতি। ওটা আমার গালি নয়, ওটা আমার বেদের মন্ত্র, তোমরা আমার বলছো এইভাবে। তাই সেই ক্ষীর ভাণ্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। কে আছো কোথায় মাধবেন্দ্রপুরী, যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কইল চুরি। ব্যাস ক্ষীর ভাণ্ড নিয়ে ওই বলতে বলতে যাচ্ছেন। এখন মাধবেন্দ্রপুরী কে মা ও তো জানে না। পূজারী সেই হাটচালা শুয়ে আছেন। ওহে মাধব, কে তোমার মতন ভাগ্যবান ত্রিভুবনে নাই। ভগবান তোমার জন্য ক্ষীর চুরি করে রেখেছে, তোমার মতন ভাগ্যবান না। মাধবেন্দ্রপুরী শুয়েছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, ও আমার জন্য ভগবান ক্ষীর চুরি করে রেখেছে আর আমাকে ডাকছে। এই বলে আমি এখানে আছি, এই হাট চালাতে বললেন। আর পূজারী নিয়ে, এই না মাধব, তুমি এই ক্ষীর খাও, মনের আনন্দে থাকো। ভগবান তোমার জন্য ক্ষীর চুরি করেছে, তোমার মতন ভাগ্যবান আর ত্রিভুবনে কেউ নাই, নাও তুমি ক্ষীর খাও। বলে তাকে ক্ষীর ভাণ্ড দিয়ে চলে গেলেন। মাধবেন্দ্রপুরী দেখলেন, আরে এই ক্ষীর তো এখন হয়ে গেছে। আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে ইশারা কথা। আরে তারপরে কি করলো? ক্ষীর দিল, ক্ষীর সেবা করলেন। ব্যাস বলছে সকালবেলা তো আমার জন্য ভগবান ক্ষীর চুরি করে রেখেছে, সব গ্রামের লোক সব ভেঙে আসবে, আমাকে প্রতিষ্ঠা দিবে যে ভগবান ওর জন্য ক্ষীর চুরি করে রেখেছে, প্রতিষ্ঠায় আমাকে কলা গাছের মতো ফুলিয়ে দেবে। ওই জন্য আমি এখান থেকে কেটে পড়ি। প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরি জান পলাইয়া, কৃষ্ণ প্রেম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যায় গড়াইয়া। প্রতিষ্ঠার ভয়ে মাধবেন্দ্রপুরী
পালিয়ে গেলেন নীলাচলে। আর কৃষ্ণ প্রেম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সেখানে সবাই বলছে এই তো সেই মাধবেন্দ্র পুরী, ওনার জন্য ভগবান ক্ষীর চুরি করে রেখেছিলেন। ব্যাস সেই ক্ষীর সেখানে মাধবেন্দ্র পুরী খুব সম্মান করলেন। সেখানে রাজা কি করলেন, সেই কর্পূর চন্দন সব দিয়ে দিলেন। ব্যাস উনি নিয়ে আসছেন, আবার রেমুনায় এসেছেন, এবারে ওনাকে চিনেছেন, ওনাকে সম্মান করেছেন। ব্যাস আর এই বৃন্দাবনের গোপাল ওখানে বলছেন মাধবেন্দ্রকে, ওই মাধব আর চন্দন এখানে বয়ে নিয়ে আসতে হবে না, আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। আর চন্দন এখানে নিয়ে আসতে হবে না, তুমি ওই চন্দন আর কর্পূর ঘষে ওই গোপীনাথের অঙ্গে লাগাও। আর গোপীনাথের অঙ্গ আর আমার অঙ্গ একই, গোপীনাথের অঙ্গে লাগালে আমার গায়ে তাপ যাবে। নিতাই গো প্রেমানন্দে হরি হরি বল। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ। Не нужно было приходить сюда, чтобы हरे कृष्णा। अब हिंदी में मधु दीदी पुष्पांजलि प्रदान करेंगी। मधु दीदी जैसे खुड़ो लिया ऐसे 10-12 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर आप लोगों ने सुना। मधु दीदी आ जाएं। हरे कृष्णा। आप लोगों ने सुना महाराज जी कह रहे हैं, एक बात तो महाराज नहीं बताया। ठाकुर कह रहे हैं गोपाल कबे आसी माधव करिबे सेवन, এই লাগি পথ আমি করি निरीक्षण। कब माधव आकर मेरी सेवा करेगा, इसलिए मैं बाट जो रहा हूँ। गोविंद नहीं बोला, माधव बोला, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। देखो तो सही, ये कोई बात है? जो बात है बताना पड़ेगा खुल के, और सब प्यार बता दिया, फिर बोल रहे हैं देखो, फिर बताया। तुम ये इतना खिलाया, मेरा पेट तो भर गया, लेकिन बहुत दिनों से मैं मिट्टी में दबा हुआ था, शरीर में जलन है। आज तुम्हारा उम्र भी हो गया, मैं किसे कहूँ माधव तुझे छोड़ करके जा, तुम्हें जाना पड़ेगा। जब मलय चंदन और कपूर ले आओ। गोविंद का नाम नहीं बताया, बोला ही नहीं कुछ। अब मधु दीदी आप लोगों को सुनाएगी। हरे कृष्णा। Мой желудок, он наполнен, но я чувствую такой холод, поэтому мне нужна сандаловая паста. Ой, чувствую жар, поэтому мне нужна сандаловая паста. Харибол, так слышно? Нормально слышно? Хорошо. हमारे शाम को रखते हैं, सब लोग का। वंदे हम श्री गुरु श्रीपदकमलम श्री गुरु वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हम जिस धरा पर उपस्थित हैं वो धरा अनुपम है। ये धरा साधारण नहीं है। राधा जी का नाम वेदों में उपनिषदों में हम ढूंढा करते हैं, कुछ खास प्रमाण मिलता नहीं है। द्वारका में, गीता में विश्व के सभी लोग प्राय राधा जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। राधा राधा नाम हम सुन भी लेते हैं, लेकिन अनुभूतियाँ नहीं होती। फिर हम वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में राधा जी के मंदिर
दिखाई देते हैं, वहाँ पर संत भी दिखाई देते हैं, लेकिन एक भूमि है गिरिराज गोवर्धन जो सिद्ध भूमि है जहाँ पर हम बैठते हैं। तो अभी हमने माधवेंद्रपुरी की कथा सुनी, इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं कि ये जो भूमि है जहाँ पर प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नव यूनोर्द्वन्द्वस्मिन् मंदम इति किल कलनार्थम लग्नस्तद्वयोर में निज निकट निवासम देही गोवर्धन। यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं। नवदीप धाम में महाप्रभु ने उनको सिखाया तो था कि रघु तुम इस तरह से भजन करना, अयाचित व्रति से रहना। वहाँ पे भजन करते करते वो गाय के उच्छिष्ट चावल भी खा रहे थे और स्वयं महाप्रभु ने उसको भोग लगाया था, लेकिन सिद्धि उनकी कहाँ हुई? जहाँ राधा कुंड में, जहाँ वो भजन करते हैं और किशोरी जी अपने वसन से उनकी रक्षा करती है। यही भूमि सनातन गोस्वामी पाठ की है। मदन डेर पर उनको ठाकुर जी मिले तो सही, संबंध प्रदाता है, हम सबका संबंध भी कराया भगवान मदन मोहन से, लेकिन बात कहाँ बनी जब वो रोज़ परिक्रमा देते हैं। हम जिस भूमि पर पैर रखते हैं, ये जो चरण रज है, ये इन गोस्वामियों की है, इन संतों की है। उन संतों की भूमि से ये भूमि सुशोभित हो रही है, इसलिए हम पग पग पर यहाँ प्रणाम करते हैं। सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते हैं हर रोज, तो भगवान शिव भी रह नहीं पाते। जहाँ जहाँ भक्त रहते हैं, शिव भी बड़े आनंदमय हो जाते हैं। अनुभूति की बात है। तो चकलेश्वर महादेव पर सनातन गोस्वामी ने भजन किया और शिव जी ने उनको जाने नहीं दिया। सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने एक उपमा बताई कि देखो ये जो किशोरी जी हैं, इनके बाल सर्पणी के समान स्निग्ध काले लहराते बाल हैं। सनातन गोस्वामी थोड़े घबराए, देखो इन लोगों का भजन कैसा है और हम लोगों का भजन कैसा है, यह तुलना करना होगा। हम इस भूमि पर उपस्थित हुए हैं, अपने जन्म की सार्थकता तो है, हमको किशोरी जी ने यहाँ बुलवा भी लिया है, लेकिन उस चीज़ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। तो सनातन गोस्वामी जब परिक्रमा करते हैं तो किशोरी जी झूलन पर उनको दर्शन देती हैं, और दर्शन देकर के जो पीछे उनको छुटिया है वो दिखाई दी और के लाली रुक रुक रुक। तो रूप गोस्वामी ने जो रखा था, सनातन गोस्वामी ने उसकी अनुभूति की, ऐसा नहीं था वो हमको बताने के लिए। यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन बहुत सारे सरोवरों से तो भगवान की सेवा करते ही है। देखो जब राधा जी और बलदेव जी दोनों जहाँ पर निकलते थे, तो जब राधा वहाँ पर हैं, बलदेव आते थे, तो शिलाएं जितनी हैं वो गौर वर्ण की हो जाती थी, और जब बलदेव यहाँ से जाते हैं तो शिलाएं नीले वर्ण की हो जाती हैं। जितनी भी छाया हमें दिखाई दे रही है, जितने भी सरोवर दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो सब गिरिराज जी ने राधा कृष्ण की सेवा के लिए प्रस्तुत कर रखे हैं। जयति शैल कुलाधिराजो योग गोपिका भी रुदितो हरिदास वर्या। हरिदास तो हम सब हैं, लेकिन गोवर्धन को स्वयं राधा जी ने हरिदासों में श्रेष्ठ कहा। एक तो हरिदास हैं युधिष्ठिर, दूसरे हरिदास हैं उद्धव जी, और तीसरे हरिदास हैं गिरिराज गोवर्धन। युधिष्ठिर ने जब राज से यज्ञ किया तो वहाँ पर भगवान की कितनी सेवा हुई, स्वयं भगवान अग्र पूजा कर रहे थे। भगवान ने अर्जुन का रथ भी हाँका था, और वो हमारे बृहद भागवतामृतम में उनको प्रेम पर भक्त कहा गया, प्रेम पर भक्त है। अनुभूतियाँ उतनी नहीं है। उसके बाद उद्धव जी उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान अपने मन की बहुत सारी बातें उद्धव को बताते हैं। वो भी मथुरा में जब रहे तो भगवान ने उद्धव जी को छठी करा भेजा, और वहाँ पर भेजते भेजते बताया कि देखो उद्धव, ये जो सड़क है ये वृंदावन की ओर जा रही है, जहाँ पर मेरी गोपियाँ मुझे दिन रात मेरा नाम स्मरण करती हैं। नाम का स्मरण जो है, आनंद अम्बुदी वर्धनम, ये जो नाम है
हमेशा आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है। ये हमें कहाँ पर अनुभव होता है? वृंदावन में और इधर गोवर्धन में। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि उद्धव जी ने जब आकर के राधा जी से बात करी है और राधा जी से बात करते करते राधा जी कह गई है कि उद्धव उनकी बात छोड़ दो, भण्यताम अन्यवार्ताम, हृदय में इतनी पीड़ा है, बात करते करते अपलाप करती हैं, प्रलाप करती हैं और इस तरह से भ्रमर गीत, एक भ्रमर को देखकर भी समझती हैं कि वहाँ से आया। लेकिन उसके बाद भी वही राधा जी गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य कहती हैं। खुद गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर राधा जी की सखी के रूप में, वर्य नहीं है बल्कि सखी के रूप में भी राधा जी की सेवा करते हैं। जहाँ पर 7 कोस गिरिराज गोवर्धन है, वहाँ राधा कुंड में वो नतमस्तक हो जाते हैं। यही वह भूमि है जहाँ कृष्ण राधा, जहाँ पर ही वो राधे 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 में सारी भूमि हो जाती है। इसके गोवर्धन के अतिरिक्त, क्योंकि यह गोवर्धन माध्यमिक लीलाओं का केंद्र है। माध्यमिक लीला का समय अष्टयाम लीला में 4.5 घंटे का है। तो कुसुम सरोवर में, राधा कुंड में नित्य लीलाएं चला करती हैं। और यहाँ पर जरा आवाज कम कीजिए ना प्लीज। ये जो महाराज हुआ, महाराज के बाद बनखंडी में महाराज हुआ, ठीक है। वहाँ पर चंद्रमा आया चंद्र सरोवर में। मेरा एक प्रश्न है, भगवान अपीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष रंतु मनश्चक्रे। तो जो भगवान ने शरदोत्फुल्ल में मल्लिकाएं देखी, उनको देख करके भगवान की रास करने की इच्छा हुई। तो उद्दीपना उनको चंद्रमा से मिली, उनको उद्दीपना शारदीय जितने भी फूल खिले वहाँ से मिली, या उन्होंने गोपियों को वरदान दिया था कि मैं तुमसे मिलूंगा। और खुद ही फिर उन्होंने बंसी भी बजाई। बंसी उनकी कई प्रकार से बजती है, ग्वाल वालों के लिए भी बजती है, सखाओं के लिए भी बजती है, गायों के लिए भी बजती है। लेकिन उस दिन बंसी में जो क्लीन शब्द की ध्वनि निकली, वो अस्फुट ध्वनि निकली। हर गोपी को लगा कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो उस रास में स्वपक्षा, विपक्षा, सुहृद, तटस्थ सब प्रकार की गोपियां एकत्रित हुई। लेकिन यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन में जो किशोरी जी स्वयं कह रही है, हरिदास वर्या हंता रद्रि अवला, जो किशोरी जी बता रही है क्यों? क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन है यहाँ पर मात्र वो किशोरी जी की सहायता कर रहा है ऐसा नहीं है, भगवान की गायों के लिए भी सहायता कर रहे हैं। भगवान के जो गण हैं उनके लिए भी वो सखा बन करके तैयार है। तो यह कदम खंडी में यहाँ पर 2 ही प्रकार की गोपियां रही, स्वपक्ष और विपक्ष। जो पंचायती रास है वो वृंदावन तक रह गया। और उसके बाद जब राधा कुंड आया तो राधा कुंड में नित्य रास और निभृत रास हो गया, जिसकी हम पांडव भी आकर के वहाँ पर वृक्ष के रूप में सोच रहे हैं कि ऐसी भक्ति हमें कम मिले। चारों तरफ यहाँ पर कुंज हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो स्थान है ये किशोरी जी का स्थान है, माध्यमिक लीलाओं का केंद्र है कुसुम सरोवर में। तो जो हमारे महाप्रभु जी जिन लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं वो कौन सी लीला है? यही कदम खंडी जो दिन में लीला हुई है। वहाँ पर तो किशोरी जी ने मान किया और हर गोपियों ने सौभाग्य मत पर कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारा पसीना पहुँचते हैं, हम कहते हैं वैसा ही करते हैं। हल्लसिक नृत्य है, कृष्ण बहुत जोरदार नृत्य कर रहे हैं, हर गोपी के बीच बीच में कृष्ण है। लेकिन सब गोपियों को जब सौभाग्य मत हुआ है तो किशोरी जी सोच रहे हैं कि मेरा वैशिष्ट क्या है? मुझसे तो कहते हैं कि तुम मेरी प्रियतमा हो, तुमसे अधिक मेरा प्रिय कोई नहीं है, और जहाँ देखो मेरे जैसा सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। तो किशोरी जी वहाँ से निकल जाती हैं। तो उनको देखने के लिए वो पीछे पीछे भागते हैं। इमली तला तक बात पहुंचती है, सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं और वहां पर अभी भी विपक्षा नायिका कहती है, अन्य आराधी तो नूनम भगवान हरिश्वराहा। ये कौन गोपी है जिसने भगवान की इतनी उपासना की है? लेकिन यहाँ पर भगवान जो 2 ही पक्ष की गोपियां हैं, चंद्रावली है और राधा जी हैं। कदम खंडी, जहाँ कदम राधा जी का प्रतीक है और तमाल कृष्ण का प्रतीक है।
तो यहाँ पर जो रास होता है वहाँ पर श्री कृष्ण सर्टिफिकेट देते हैं कि मुझे राधा से अधिक कोई प्रिय नहीं है। और इसी को जो यहाँ पर जो विरह हुआ है, विरह की तीन स्थितियाँ हैं, आविर्भाव, स्मरण और स्फूर्ति। स्मरण किया जाता है अपने आराध्य देव का। आराध्य देव की जब तक ये विरह हमारा, देखो वो अलग बात है कि हम सिद्धांत में कह दें कि जो जीवात्मा है परमात्मा है, तो जीवात्मा भटक रही है कब से, कई कई जन्मों से। लेकिन फिर जब हमारी कोई सुकृति हो जाती है, जैसे कि हम राजा नृत्य के जीवन में देखते हैं, कभी उन्होंने कभी श्रीमद् भागवत दे दिया था किसी मंदिर में, तो उनको भगवान ने अपने स्पर्श किया और इस तरह से उनको पुनः गिर गिर से राजा नृत्य की योनि प्राप्त हुई। तो हमारा कुछ तो सौभाग्य है कि हम इतनी अनुपम इस भूमि पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर जो किशोरी जी को सर्टिफिकेट दिया गया है कि यही मेरी सबसे प्रियतमा है, तो उसी का वर्णन स्मरण, स्फूर्ति और आविर्भाव बार बार किशोरी जी ध्यान करती हैं, बार बार स्फूर्ति होती है और भगवान आते हैं। इन्हीं को महाप्रभु जी अपने हृदय में रात दिन गीत गोविंद सुना करते हैं। यही वो भूमि है जहाँ पर सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि का तो है, साथ में हमारे राघव पंडित की भी गुफा है। तो राघव जिनकी झोली झाली वहाँ पर जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि श्रीमन महाप्रभु जैसे कि शची माता की रसोई में रंधन में रहते हैं, नित्यानंद ठाकुर के नर्तन में रहते हैं, श्रीवास के आंगन में रहते हैं, इसी प्रकार राघव पंडित की झाली में रहते हैं। तो राघव पंडित ने भी यहाँ पर भजन करके सिद्धि की। झाली तो वहाँ जा रही है, उनकी बहन दमयंती भी भेज रही है, वो सब महाप्रभु के बहुत अधिक प्रेष्ठ हैं, प्रिय हैं। उसके बाद भी यहाँ पे भजन किया है और भजन करके वो जो गुफा है श्रीनाथ तक जा रही है। और माधनपुरी के जो श्रीनाथ जी हैं आज भी शयन यही गिरिराज में ही हो रहा है। श्याम कुंड, राधा कुंड भगवान के नेत्र हैं। यहाँ पर नवल कुंड, अप्सरा कुंड है। जटिला कुटिला की दाल यहाँ पे गलती नहीं है। यद्यपि सूर्य कुंड पास में ही है और सूर्य कुंड के बहाने राधा जी का जो विहार है, भगवान राधा जी से सारी सेवाएं लेते हैं। लेकिन जहाँ पर जटिला कुटिला आती है तो दोनों द्रवीभूत बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण नवल किशोर रूप धारण कर लेते हैं और किशोरी जी अप्सरा का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये स्थान बहुत सारी लीलाओं से सुशोभित है, जहाँ पर मेरे गुरुदेव ने भी भजन किया था और भजन करते कई वर्ष तक गुरुदेव ने भजन किया। जहाँ के जो प्राचीन लोग हैं वो बताते हैं कि गुरुदेव नहीं देखा करते थे कि सांप घूम रहे हैं या मेढक चल रहे हैं, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। और जहाँ पे गुरुदेव भजन कर रहे थे वहाँ पर स्वयं गिरिराज शिला निकली थी। तो महाराज जी की जो सिद्धि है ये उस सिद्ध की ये भूमि है। यही यहाँ पर हमारे गुरुदेव कितने ही वर्षों तक हमको इन सब बातों को बताते रहते थे। अब जो भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण किया 7 दिनों तक, वहाँ विशेष बात एक ये रही कि जब गिरिराज जी उठाया था तो ब्रज के सब लोग नंद बाबा से झगड़ा कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि छोटे से बच्चे की बात माननी चाहिए क्या? लाला की बात मान गयो बाबा, बह जाए गो ब्रज सारोरी, गोवर्धन नख पे सारा ब्रज बह जाएगा। क्या किया? लेकिन भगवान ने फिर गिरिराज पर्वत उठाया। तो जो गिरिराज गोवर्धन उन्होंने उठाया तो 7 दिन तक उठाने की क्या आवश्यकता थी? अरे जो एक आंख से, दृष्टिपात से, अपनी संजीवनी दृष्टि से, अमृतमय दृष्टि से सारी सृष्टि को उलट पुलट कर सकते हैं। कालिया हृदय में जब गोपजन वहाँ का पानी पीते हैं और सब मृत हो जाते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण एक आंख से देखते हैं, बस कृपा दृष्टि करते और सब जीवित रह जाते हैं। और यहाँ पर इतने दिनों तक क्यों चला? नंद बाबा से बात तो हो रही है। जब यशोदा जी तैयारियां कर रही हैं सारी, तो नंद बाबा, यशोदा कह रही है मुझे समय नहीं है, तो तेरे बाबा से पूछ के किस तरह की तैयारियां चल रही है। तो बाबा से पूछा जा रहा है इतनी सब तैयारियां क्यों हो रही हैं? क्या आज मेरा जन्मदिन है क्या? आज मेरा नक्षत्र है क्या? तो बाबा ने कहा कि देख बेटा सुन, हम गोप जाति के हैं, गाय हमारा धन है और ये जो धन है ये कहाँ से आएगा? घास से आएगा।
घास कहाँ से आएगी? बरसात से आएगी। बरसात कौन बरसाएगा? इंद्र बरसाएगा। तो हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर इंद्र की पूजा नहीं होती वहाँ पे क्या बारिश नहीं होती है क्या? तो यहाँ पर भगवान थोड़े से कर्म की प्रवर्तना भगवान की दिखाई देती है, लेकिन ऐसा है नहीं। तब भगवान ने इस गिरिराज जी को अपना ही सब प्रदान किया और सबसे कहा जितनी भी सामग्री बनी है चलो सब लोग लेके चलो। तो सब लोग पालकियों में बैठे हैं। गिरिराज गोवर्धन में एक जो मिथक है कि पैदल परिक्रमा देकर ही गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है, ऐसा मैंने ब्रज भक्ति विलास में रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि भाव से फल मिलता है। यदि सामर्थ्य नहीं है, गिर रहे हो, पड़ रहे हो, तो सवारी पे जा सकते हो। यहाँ पे आसपास के जितने भी वन हैं, तो उसके बाद जब सामग्री लगाई गई और भगवान ने गिरिराज जी को अपना ही स्वरूप प्रदान किया है, तो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही है, श्री कृष्ण का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण इस रूप में सब जगह फैले हुए हैं। तो जब भगवान सामग्री का भोग लगा रहे हैं, सबको पालकियों पर बैठाया गया, परिक्रमा लगाई गई। परिक्रमा लगा करके भगवान ने सारा प्रसाद पाया और पा करके सोचा मेरे भक्तगण क्या खाएंगे, उन्होंने सारा की सारा प्रसाद वापस रख दिया। और जबकि खाते खाते बोल रहे हैं आन योर ऑल लाओ। यहीं पर मानसी गंगा का जल आ रहा है और मानसी गंगा का जो प्राकट्य है, उस मानसी गंगा का भी देखो, एक मैं बीच में बता रही हूँ। मानसी गंगा में नौका लीला हुई है, मानसी गंगा में किशोरी जी की सुरापान लीला भी हुई है। उस मानसी गंगा पे कल हमने दीपदान किया और दीपदान करते समय जो शुद्ध भक्त रहे होंगे उनको ये लीलाएं अवश्य याद आई होंगी। तो इधर गिरिराज जी में भोग लगाया जा रहा है, तो सारा ब्रज इंद्र को सहन नहीं हुआ। अरे आज मेरी पूजा नहीं आई, ये क्या हुआ? अरे छोटा सा लड़का नंद का लाला मेरी पूजा रुकवा दी इसने। तो उसने सामर्थक मेघ बुलाए और कहा जाओ ब्रज में बरसात कर दो, इतनी बरसात करो कि ब्रज पूरा की पूरा डूब जाए। प्रलयकालीन मेघ बरसाए गए, सबकी सब भागे, गैयाएं भागी। कृष्ण ने उसी समय अपनी कनिष्ठ का उंगली पे गिरिराज पर्वत धारण कर लिया और कहा गोपों से पहले पशुओं को अंदर लाओ, उसके बाद ब्रज के जितनी किशोरियां हैं उनको बैठाओ, बड़े बूढ़ों को लेकर के आओ। तो ऊपर जब उठाया गया तो नीचे बिल स्वर्ग था, जितना ऊपर स्वर्ग में संपत्ति नहीं है। जब गिरिराज पर्वत उठाया गया और छतरी के समान उसको धारण कर लिया गया तो नीचे देखा कितनी सुख संपदा थी। आश्चर्य की बात यह है कि आप एक ही चरण पर खड़े रहे, बिल्कुल ऐसे एक तिरछा पैर उनका खड़ा रहा, भगवान हिले भी नहीं। हमारे महात्मा ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भगवान ने जब ये उठाया है तो भगवान की कांख से भी कमल के समान लालिमा प्रदर्शित हो रही है। नेत्रोत्सव का समय है ये। भगवान ने 7 दिन इसीलिए उठाया कि किशोरी जी सामने है, सब गोपियां सामने है। कछु माता को दूध पियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा सो गिरवर लिया उठाए। जैसे सीता जी की कृपा से भगवान श्री राम ने धनुष उठाती तोड़ दिया, ऐसी राधा जी की कृपा से भगवान धारण किए रहे। और ये जो भगवान क्या कनिष्ठ उंगली पर इसको धारण कर रहे थे, गिरिराज जी के उनकी उंगली पर धारण कर रहे थे क्या? वो तो बहुत ऊंचा चला गया और ऊंचा चला गया। स्वर्ग में जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत से भी बहुत ऊपर चला गया। इंद्र ने खिड़की से नीचे झांका, ये क्या आ रहा है? अरे ये क्या है? सोने का जो पर्वत है सुमेरु पर्वत, उससे भी ऊपर गिरिराज पर्वत चले गए। ये क्या है? तो उसके बाद जब वो घबरा गया, ये क्या हो रहा है, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने ये क्या कर डाला? तो ब्रह्मा जी बोले मूर्ख, मेरे से भी यही गलती हुई थी, बच्चों को चुरा के लखाया था और मैं तो स्तुति भी करी, स्तुति के बाद मैं तब देखा तक नहीं, अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करूं? क्षमा मांग, मुझे तो देखते क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा कर सुरभि गाय को ले जा। तो इंद्र ने वहां पर ऐरावत हाथी को लिया और उसकी सूंड में
Ну, я уже тоже... बहुत स्वर्ण जटित я रत्न тоже जटित कलश को रखा और उस कलश में जल रखा ऊपर से, जो हम गोविंद कुंड का जल देखते हैं। अद्भुत है, सुगंधित है, अमृत है। उस जल को वो लेकर के आया, सुरभि गाय को आगे किया जिससे भगवान क्रोधित ना हो, और उस जल से भगवान का अभिषेक किया और उनका नाम किया गोविंद। И он предложил корову с तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पर потому что он знал, что अरिष्टासुर Кришна वध के बाद голод Саля, он любит коров. किशोरी जी ने फिर बहुत मधुर मधुर लीलाएं की। कृष्ण, तुमने यहाँ पर बैल का वध किया है, इसलिए तुम्हें पाप लगा है, तुम्हें तीर्थों में जाना होगा। तूने कहा मुझे जाने की क्या जरूरत है, मैं तीर्थों को यहीं बुला देता हूँ। सारे तीर्थ से श्याम कुंड तो प्रकट हो गया, लेकिन किशोरी जी कि इनका प्रकट हो गया तो सखियों को बात रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमारा भी एक कुंड होना चाहिए। तो भगवान ने कहा सब तीर्थों से कि जाओ, भरदोले नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो सब जाकर के माँ सी गंगा से जल लाने लगी। तो तीर्थों को भगवान ने आँख से संकेत किया। उसके बाद स्वयं राधा जी ने वज्र कुंड से अपने कंगन से, यहाँ कंगन कुंड है, कभी भी देखिए राधा कुंड की जब सफाई होती है तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना सुंदर इसको बनवाया था, पूरा चूना से बना हुआ है। तो नीचे जो जल है अपने आप ही कंगन कुंड से खुद ही जल निकलता है और खुद ये भर जाता है, जिसको स्वयं भगवान ने कहा है कि जितनी राधा मुझे प्रिय है उतना ही ये कुंड प्रिय है। इसलिए कुंड में प्रवेश करते समय बार बार राधा जी का चिंतन करो, सीधे पैर मत डालो, ऐसे घुसो पूरे उस आवेश के साथ कि मैं राधा जी और कृष्ण के चरणों में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी कृपा मिलेगी। तो पूरा गिरिराज गोवर्धन अनुपम भावनाओं से हमारे गुरुदेव पूरे 15-20 दिन तक इस गिरिराज की महिमा बताया करते थे। तो उसमें जो भगवान ने 7 दिन उठा के रखा, 7 दिनों तक ना किसी ने खाया ना किसी ने पिया, भगवान ने सबकी क्षुधा निवृत्ति कर दी थी, किसी को भूख प्यास नहीं लगी। और बाद में जब ये गोवर्धन रख रहे हैं उसके पहले सबको निकाला गया है अच्छी प्रकार से। सब जब निकल गए हैं, हर एक व्यक्ति बीच बीच में मधुमंगल कह रहा है। ऐसे हमारे रसिक महात्मा बनाते हैं कि कृष्ण तो थक गया होगा, ला हम अपनी लक्ष्यों पे इस गिरिराज पर्वत को ले लेते हैं। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा अच्छी बात है ले लो, पर गिरिराज थोड़ा सा हिलने लगा, ऐसे रसिक महात्मा कहते हैं। लेकिन 7 दिन तक 7 उत्सव तक किशोरी जी सामने हैं, कभी क्योंकि पूर्व राज है, अभी रास हुआ नहीं है, 7 वर्ष के हैं भगवान। और यशोदा जी बड़ी घबरा रही हैं, बहुत घबराती हैं। फूली फूली फिरे जसोदा गोपिन के घर घर में, तनक तनक जाय देओ सहारो मेरो काना बारो री गोवर्धन नख पे। तो ललता विशाखा मजाक कर रही है, ललता विशाखा करे मसोरा गिरवर है रयो भारी, 3 लोक जाके उर में बसत है, 3 लोक जाके उर में बसत है, मात कहे मेरो बारो री गोवर्धन नख पे। तो इन लीलाओं का हमें स्मरण होना चाहिए। हम जब शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से, अनुभूति संपन्न भक्तों के मुखारविंद से जब हम लीलाओं को सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसकी जो तलहटी है, जहाँ पर गोवर्धन शापित है कि एक एक बूंद, एक एक तिल करके उसको घटना होगा, लेकिन वास्तव में तो ये है कि वो ब्रज की रज में मिलने वाला है, वो शापित नहीं है। तो माधव महाराज का ये चल रहा है, मैं विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। क्या प्रश्न पूछा था? प्रश्न है यार, प्रश्न तो बोला ही नहीं आपने। भगवान ने चंद्रमा को देख के रास किया या गोपियों को वर्णन? हरे कृष्ण। नाम भी मधु है, मधु बरसा रही थी, बीच में मुझे टोकना पड़ा। मधु दीदी पूछ को आप लोग साधु मानते हैं कि नहीं मानती हैं? कौन कौन को साधु मानते हैं? हाथ उठाओ। अरे सभी लोग मानते हैं, ठीक है। देखो मधु दीदी ने पूछा कि चंद्रमा को देख के उद्दीपना हुई रास करने की, गोपियों को देख करके? इसका उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, सनातन गोस्वामी श्रीमान महाप्रभु से पूछ रहे हैं के आमी कैनो मोरे जारे तापत्र, यह नहीं जानी मोर कोई छहित है, साध साधन तत्व कहिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, मुझे क्यों ये त्रिता मुझे दग्धीभूत कर रहा है?
मैं नहीं जानता हूँ मेरा कैसे कल्याण हो। Who am I? Why I slept by 3 torments? I don't know what is led to my ultimate goal. तो महाप्रभु बताया जे जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। इससे पहले बताया दाढ़ लागी प्रश्न पूछे साधुर स्वभाव। जो साधु होते हैं तो क्या करते हैं, जो प्रश्न पूछते उत्तर भी जानते हैं, लेकिन इसके दृढ़ता के लिए प्रश्न पूछते हैं। मधु को साधु माना आप लोगों ने, तो मधु दीदी इसका उत्तर जानती है, वही उत्तर देंगी। जोर से बोलो दो। Также Мадху Дидяна также задавая вопросы, она знает ответ, но все равно она задает вопрос. अभी नहीं, बाद में उत्तर देंगी। और बता 7 दिन क्यों? ये तो उत्तर तो बहुत सीधा साधा है। 7 दिन क्यों? ये 7 दिन के लिए कोई 15 में पॉइंट में उत्तर दिया था। मधु दीदी थी नहीं, बॉम्बे में मधु पी रही थी, आई नहीं तो मैं क्या करूं। दूसरे बात है, और एक बात मैंने बताया था कि गिरिराज धारण में एक है एक्शन, एक साइड एक्शन, एक रिएक्शन, एक काउंटर एक्शन, एक एंटी एक्शन, 5 एक्शन दिखाया था। आपके जो भक्त लोग हैं, गीता है, ये अनुराधा दीदी है, सपना दीदी है, विमला दीदी है, रिकॉर्ड भी तो फेसबुक में मिल जाएगा। 5 दिखाया। अब देखिए ये भूमि के वर्णन का तो पूरा दीदी बहुत सुंदर बोली, कोई दो राय नहीं है। जैसे सनातन गोस्वामी ये दिखाया, जब रूप गोस्वामी पाद रहते थे टेर कदम, सनातन गोस्वामी पावन सर्वे तट, कभी रूप गोस्वामी आते कभी सनातन गोस्वामी जाते। जब सनातन गोस्वामी एक बार गए, उस समय रूप गोस्वामी बाद चाटू पुष्पांजलि लिख रहे थे। उसमें श्लोक में देवी गोरचना गौरीम प्रवरंदी बराम्बरा मनिस्तवक विद्योति बेनी बलंगना फना। राधा जी के अंग कांति बोले गोरचना। गोरचना क्या चीज है? जब साती नक्षत्र के पानी सांप के फन पर गिरता है तब होता है सर्पमुनि। हाथी के सिर पर गिरने पर गजमुक्ता, केले के पौधे पर गिरने पर कर्पूर, बांस पर गिरने पर वंशलोचन, ऑयस्टर सेल यानी झिनुक में सिप में गिरने पर उसमें होता है मुक्ता। ऐसे ही गायों के खुर में या सिंह पर गिरने गोरोचना, बहुत सुंदर प्रकाश है। ऐसे राधा जी के अंग कांति देवी गोरोचना गौरी प्रवरंदी बराम्बरा मनिस्तवक विद्यति बेनी बलंगना फना। राजा जी का जुड़ा का उदाहरण नागिन से दिया, सनातन से भाया नहीं। तब बताया कि रूप ये तो बहुत, लेकिन राधा जी अमृतमयी है, महाभावमयी है, तुम इसका नागिन से तुलना दिया, ये ठीक नहीं किया। तो आप इसको बदल दीजिए। सनातन से बड़े भाई हैं, गुरु भी हैं। क्या वो जानते नहीं थे? राधा जी देखा नहीं कभी? रूप गोस्वामी की महिमा दिखाना चाहते सनातन गोस्वामी। जैसे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर को नवद्वीप में मारने के लिए कोशिश किया, पर बोलते परम गुरुदेव अपने वस्त्र बदल करके उनको बचाया। क्या प्रभुपाद की क्षमता नहीं था जो राधिका के नयनमणि मंजरी अपने रक्षा करना या कुछ करना? प्रभुपाद अपने विनोद की महिमा जगत में दिखाना चाहते हैं, इसलिए लीला की। ऐसे सनातन गोस्वामी जगत को दिखाना चाहते हैं रूप। उनके जो छोटे भाई, उनके शिष्य कितने भाई प्यारा जगत को दिखाना था, इसलिए लीला हुई। जब आ रहे थे देखा ऐसे ही एक किशोरी झूल रही है झूला में और किशोरी झूला रही है, और जो उनको जुड़ा है ऐसे हिला लाग मानो कल नागिन ऐसे डसने के तैयार है, दौड़े लाली लाली करके। क्या नहीं जानते कौन है? यही तो नौरवत लीला है। एक बहुत सुंदर वर्णन है, और सबका तो पूरा परिक्रमा करा दिया। और शायद मधु जी पैदल नहीं कर पाती है मेरे जैसे, इसलिए बोलते ही हैं कि जो नहीं कर गाड़ी में चल सकते हैं। ये बात ठीक है। गिरिराज परिक्रमा में जसोदा पैदल नहीं किया,
रोहिणी मैया नहीं क्या बच्चों को लेकर के खिलाड़ी खा रही हैं, जो बड़े बड़े लोग गाड़ा में किया इसका वर्णन है शास्त्र में। इसलिए कोई जैसे भी करो करना है। और आप सब लोग वैष्णवी हैं, एक निवेदन कर रहा हूँ, बताया वैष्णवेर निवेदने कृष्ण दयामय मोह न पामरपति हवे न सदय। वैष्णवीगण कृष्ण को निवेदन करने पर उनके प्रार्थना भगवान सुनते हैं। मैं कृष्ण ने कहा आप लोग गिरिराज से प्रार्थना करें कि मेरे पैर गिरिराज ठीक कर दे, कि उनके परिक्रमा आप सबके साथ कर सकूं। करिए प्रार्थना ताकि मैं जल्दी ठीक होके सबके साथ परिक्रमा कर सकूं। আমি বললাম আমার পায়ের জন্য আমি তো পরিক্রমা করতে পারছি না পায়েতে, আপনারা সকলকেই গিরিরাজকে প্রার্থনা করুন আমার পা চারিদিকে গিরিরাজ ঠিক করে দেন, যেন আপনাদের সকলের সঙ্গে গিরিরাজের পরিক্রমা আগামীবার থেকে করতে পারি। বলুন সব পার গিরিরাজকে প্রার্থনা করুন। গৌর প্রেমানন্দে হরি জোরে উলুদিন জোরে। ठीक है, सभी लोग प्रार्थना कर रही है ना, कर रहे हैं ना आप लोग कि मेरे पैर गिरिराज जल्दी ठीक कर दे। मैं बहुत डॉक्टर दिखा लिया, मैं विश्वास नहीं, गिरिराज सब कर सकते हैं। तो गिरिराज के मैं भी प्रार्थना करूँ, आप लोग ही बताइए मेरे पैर ठीक कर दे, मैं जल्दी इसी साल परिक्रमा कर सकूं इसी अंग्रेजी कैलेंडर में। अब देखिए आज हम सब लोग जाएंगे 10:30 के बाद परिक्रमा में गिरिराज को भोग आरोपने के लिए। उसमें इधर सबके अभिषेक करवाया जाएगा, उधर इसमें जब अभिषेक के लिए जाएंगे हमारे सन्यासी लोग जाएंगे अभिषेक में, जो लोग जा सकते हैं। और कोई भी जाके हुड़दंगा मचाए, जो लोग बलिष्ठ हैं वो लोग गार्ड करेंगे ताकि और कोई न जाए, नहीं तो ये पूरा ब्रॉडकास्ट होता है। लोग बोलते हैं आप लोगों का कोई श्रृंखला नहीं है, ऐसे उच्छृंखल है, इसलिए आप लोग का ऐसे व्यवहार करना है पूरा जगत में हमारे गुरु वर्ग का नाम फैले, सुनाम हो। उसके अंदर सन्यासी लोग रहेंगे ही, और जैसे हमारे हरिदेव है, सत्य है, प्राणगोपाल है, और ये बलिष्ठ लोग साथ में रहेगा, वो लोग भविष्य करेगा, उन लोग मदद करेगा। अब हरिजन महाराज बांग्लाय इसी अन्नकूट के सही महिमा के बारे में बताएंगे हरिजन महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सचिनंदन गौर हरि की, गिरिराज महाराज की। आज अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज चरण कमले अनंत के साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी तदंतर मदीय शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमले अनंत के साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी तत्पश्चात जूनियर सभापति महाराज विष्णुपाद भक्त माधव गोस्वामी महाराज, परम पूज्य पात्र स्वामी भक्ति वेदांत गोविंद महाराज, विष्णुपाद भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज आदि तिरनिपाद गण चरण अनंत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करी पूजनीय वैष्णव बिंद सुधी सज्जन बिंद मातृबिंद चरणे जठाय दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे। आज गो पूजा, गिरिराज गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट महामहोत्सव। सचिनंदन गौर हरि কিভাবে গোকে সম্মান দিচ্ছেন দেখুন। গো মাতা এবং বৃষকে বলা হচ্ছে পিতা। তো মহাপ্রভু বলছেন কাজীকে
এই তোমরা গরু মেরে খাও কেন? হ্যাঁ? গো হচ্ছে মাতা, Почему গো вы হচ্ছে убиваете পিতা, коров? Ведь এদেরকে коровы মেরে это খাও наши কেন? матери. তো মহাপ্রভু গোকে সম্মান দিয়েছেন, কৃষ্ণচন্দ্র গোকে Прабhu সম্মান всегда দিয়েছেন, তিনি давал গাভী চান почтение করতেন коровам, এবং так же, как и Кришна. নিজে কোনোদিন পাদুকা ব্যবহার করতেন না। নন্দ বাবা আবার কেউ বলেছিলেন যে তোমার এরকম পায়ে, Каждый নরম день পায়ে Кришна, он গোপীগণ кормил своих коров, а также কৃষ্ণের омывал им стопы. চরণ কমলকে বক্ষস্থল রাখতে ভয় পায়, না জানে তাদের বক্ষস্থল কত কঠিন। আর সেই কোমল চরণ কমলে তিনি গোচারণ করতেন। বলছে তোমার পাদুকা করে দিই? বলছে না বাবা, Однажды Шидамая এই сказала যে Кришне, সব গাভী আছে এদের что পায়ে я তো тебе ব্যথা লাগছে। подготовлю обувь, তাহলে тапочки, কৃষ্ণচন্দ্র потому что গাভীদেরকে ты কত ходишь স্নেহ по করতেন, лесам, там ভালোবাসতেন। острые камни или еще что-то অন্নকূট острое, মহামহোৎসব, а твои стопы, они мягче, Да. чем масло, поэтому я хочу тебе также дать অন্নকূট зонтик, чтобы он মহামহোৎসবে দেখতে защищал আছে тебя от একদিন знойного কি হয়েছে, солнца. দেবমিলের দুই স্ত্রী, Кришна сказал, ну да, ты дашь мне, এক что হচ্ছে насчет моих коров, ты আবির должна তনয়া тогда им আর тоже এক дать. হচ্ছে ক্ষত্রিয় কন্যা। ক্ষত্রিয় কন্যার Таким থেকে образом, আসছে мы можем সুরজ видеть, как Кришна সেন, любит своих коров, বসুদেব মহারাজ, заботится о এবং них. সেই বসুদেব থেকে আসছে বাসুদেব কৃষ্ণ। আর আবির কন্যার থেকে আসছেন কে না পর্জন্য, সেই পর্জন্য থেকে আসছে কে না নন্দ উপানন্দ আদি। তো কৃষ্ণচন্দ্র তিনি করছেন পর্জন্যদেব, তিনি আগে থেকে পূজা করতেন কার না ইন্দ্রের পূজা করতেন। পূজা হয়ে আসছে ইন্দ্রের পূজা, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র বললেন И сейчас Махараджа যে বাবা рассказывает তোমরা историю ইন্দ্রের পূজা о করো কেন? династии Кришны. То есть про Джану был না, отцом ইন্দ্র ভগবান, তার Нанда পূজা করি Махараджа, আমরা। и он поклонялся Индре. И поэтому в этой না жизни বাবা, Нанда ইন্দ্রের পূজা Баба করতে также হবে কেন? поклонялся Индрадеву. আমরা যার থেকে И উপকৃত Кришна হই তার পূজা করব। Маломудрости спросил, এর পূর্বে আমি মাকে папа, জিজ্ঞাসা почему করলাম, ты поклоняешься Индре? কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে মা আজকে এসব Я যে তৈরি спросил হচ্ছে свою এত маму, সব, но она мне не ответила. কিসের Поэтому, জন্য? папа, пожалуйста, ответь мне. মা কোনো আমাকে উত্তর দিল না। Поклоняемся Индре. তো কৃষ্ণের অভিমান হলো, মা তো Почему আমাকে так কোনোদিন এরকম много করে নাই, вкусных আজকে কেন এরকম приготовлений? করছে? তো বাবা নন্দ বাবাকে গিয়ে বলছে, И мы украшаем свою বাবা корову. বাবা আর আজকে এত সব যে তৈরি হচ্ছে, উৎসব হচ্ছে কিসের জন্য? আমার জন্মদিন? বলছে না বাবা, তোমার জন্মদিন না। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, Сегодня মা мой তো বললো না। день рождения, তুমি или বলো না день বাবা, рождения তুমি তো সাধু, Баладева Прабhu, а может তোমার быть, তো твой গোপনীয় или নেই мамы? কিছু। তখন সে বলছে আমরা ইন্দ্রের পূজা করি। কেন Тогда না? Нанда ইন্দ্রের Баба দ্বারা আমরা ответила, উপকৃত হই, Кришна, আমরা তো сегодня мы будем গোয়ালা, поклоняться Индре, তা আমাদের সম্পদ হচ্ছে কি না গোবৎ, потому что мы гопы. গো এবং বৎস। তো ইন্দ্র বাড়ি বর্ষণ করে, এই জন্য Мы আমরা засеиваем поля, উপকৃত হই, এই জন্য আমরা ইন্দ্রের পূজা করি। দেখো বাবা, благодаря тому, что Индра посылает дождь, গণগড্ডালিকায় то всё зеленеет, ইন্দ্রের পূজা করা যাবে না। распускаются. И কেন? также যুক্তির мы তর্ক можем собрать наш দেখাতে হবে। урожай благодаря আমরা дождю. উপকৃত হই গিরিরাজের কাছ থেকে। কেন? বাড়ি বর্ষণ ইন্দ্রের নয়, ইন্দ্র দেবতার রাজা ঠিক আছে, কিন্তু জলদেবতার রাজা হচ্ছে বরুণ। Индра является তো যদি королем. পূজা করতে হয় আমরা ইন্দ্রের পূজা করব। Если вы বলে будете ইন্দ্রের পূজা করবে, совершать ব্যাস। উপানন্দ আদি যারা বৃদ্ধ গোপ তারা চিন্তা করেন কৃষ্ণ তো ঠিকই и он বলছে, также будет অতএব আমরা ইন্দ্রের পূজা слать করব না। дожди, коровы, কার পূজা করব? будут довольны আমরা нашим গিরিরাজ урожаем. গোবর্ধনের পূজা করবো। গিরিরাজ মহারাজ কি, আমরা গিরিরাজের পূজা করব। নন্দ বাবা Но Кришна দাঁড়াপিতে отвечал, ঘোষণা করে দিলেন, но ব্যাস। живем সবাই с তখন Гирираджем, থেকে যার и যে রান্না Гирирaj হয়েছিল как раз и সব রান্না берут নিয়ে нам, এসে আর গোবর্ধনের деревья, তলদেশে চলে আসলেন। траву, реки, গোবর্ধনের то তলদেশে есть এসে высокая гора, আর мы যত должны সব поклоняться ему. খাদ্য ভগবানের সেবার Он জন্য говорил, давайте с этого дня ভোগ поклоняться সব Гирираджу. একত্রিত করেছেন। Гирираджу. রুটি, И সবজি, Нанда Баба ডাল, полностью контролируем ব্রজের Кришна, যে и সব не প্রসিদ্ধ могут সব сказать জিনিস своему আছে сыну. সমস্ত কিছু И тогда все নিয়ে চলে আসেন, যার যে Враджаваси, রান্না হয়েছে। все
свои вкусные নিয়ে приготовления, এসে принесли এবারে сладости, কৃষ্ণচন্দ্র কি করলেন масло, 100 রূপে И সব все они ব্রজবাসীর সঙ্গে поместили আছেন на телеге. আর 100 রূপে কি করলেন না отправились তিনি গিরিরাজ গোবর্ধনের উপরে গিরিরাজ উঠে গোবর্ধন। আর বসে আছেন বাবা বাবা দেখো তোমাদেরকে কৃপা করার জন্য গিরিরাজ গোবর্ধন স্বয়ং মূর্তি ধারণ করেছেন আর দেখো খাচ্ছে তোমরা যে এত বছর ধরে ইন্দ্র পূজা করছো বাবা ইন্দ্র তোমাদেরকে দেখা দিয়েছে বলে দেখা তো দূরের কথা খাওয়া তো দূরের কথা কোনোদিন দেখাই দেয় নাই এত অহংকারী ইন্দ্র যে তার পূজা করছে একটু দেখে যাক তো তার কিসের সে দয়ালু Гиридж, মহাপ্রভুর একটু পূজা করলে মহাপ্রভু আসেন কৃষ্ণের পূজা করলে কৃষ্ণচন্দ্র আসেন আর গুরুবর্গের পূজা করলে গুরুবর্গগণ আশীর্বাদ করেন তাহলে তোমরা যে ইন্দ্রের পূজা করছো দেখো তো ইন্দ্র তোমাদের কি করেছে কোনদিন দেখতে আসে না খেতে আসে Также, если мы молимся Махаврабху, অহংকারে পরিপূর্ণ перед нами, молимся ঘমন্ডি Гуру, বলছে Гуру предстанет перед нами. তো আমরা ইন্দ্রের পূজা করব না Врачевайся молились Гириджу, তোমাদের কোনো ভয় Гиридж тоже করবে না предстал в форме. ইত্যাদি বলছেন আর বলে কৃষ্ণচন্দ্র নিজে 100 রূপে সেবা করছেন আর বলছে আরো নিয়ে এসো আরো নিয়ে এসো और আনো এর নাম হলো আন্নর গ্রাম এবারে সমস্ত কিছু সেবা হচ্ছে তো আদি অন্নকূট হচ্ছে এই ব্রজের শুরু হচ্ছে তারপরে দ্বিতীয় অন্নকূট হচ্ছে প্রসিদ্ধ অন্নকূট হচ্ছে এখনই আমরা মহারাজের মুক্তি শ্রবণ করলাম যে মাধবেন্দ্র পরিপাল তা আদি অন্নকূট মহোৎসব কখন না কৃষ্ণচন্দ্র যখন সময় ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করে গিরিরাজের পূজা করালেন তখনই হচ্ছে আদি অন্নকূট অন্নকূট মহা মহোৎসব কি এর সম্বন্ধে এই গিরিরাজ গোবর্ধনে যা আছে আমরা অন্যান্য বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রবণ করব আমি এখানে সমাপ্ত করলাম বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ হরে কৃষ্ণ আপনারা বাংলা ভাষা এতক্ষণ শ্রবণ করলেন একটা আমি বিশেষ সিদ্ধান্ত বলতে যাচ্ছি ধ্যান দিয়ে শুনবেন তাহলে বুঝতে পারবেন ये मैं बांग्ला हिंदी दोनों में ही बता दूंगा देखिए ये गिरिराज है कौन मैं और तीर्थ महाराज इनका नाम शुभानंद था मेरा नाम नवीन था नवीन कृष्ण हम गुरु जी के पास बैठ कर के हम लोग भविष्य पुराण पढ़ते थे जब समझ में ना गुरु जी से पूछते उसमें एक विषय आया प्रकृति मनसो जात गिरी गोवर्धनो महान प्रकृति के मन से गिरिराज सृष्टि हुई है उत्पन्न हुए हैं या प्रकट हुए हैं इसमें तो हम लोग बोले ही तो था गिरिराज प्रकृति मतलब शक्ति है तो राधा जी प्रकट हुई है ऐसे 2-3 साल 4 साल से बीता एक दिन गुरु जी से मैं पूछा और ये जब पढ़ा था उस समय सन्यास नहीं तो बहुत पहले की बात है एक दिन सन्यास के 2-3 साल बाद गुरु जी से पूछा गुरुदेव आप जो बोलते हैं ये राधा जी के मन से प्रकट हुए हैं ये तो डायरेक्ट तो लिखा हुआ नहीं है अगर ये राधा जी से ही होता तो गिरिराज महाराज ऐसे नाम तो नहीं होता जो लोग थोड़ा संस्कृत के नॉलेज है जैसे मोदी समझेगी इसको विशेष सही जललिंगं विभक्ति वचने चजे तानी सर्वाणी जज्जानी विशेषण पदेयोपि ये विशेष का जो ये सब वचन में इसमें व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ तो ये गिरिराज महाराज दोनों पुंगलिंगवाची शब्द राधा जी से अगर प्रकट होती डायरेक्ट होते तो गिरिरानी महारानी होती गिरिराज महाराज नहीं हो सकते न राजा होता न महाराज होता या गिरिरानी और महारानी ऐसे होता गुरु जी तो चक्कर में पड़ गए बोले बिल्कुल ठीक कहा बोले गुरु जी अगर ये लड़की होती तो आप जब उनको पूजा करते जनेऊ क्यों चढ़ाते हैं क्या लड़कियां जनेऊ पहनती हैं ऐसे महाराज भी नहीं हो सकता 4-5 साल पॉइंट बता दिया तो गुरु जी बता देख इसका कारण क्या है प्रकृति और मैं फिर बताया गुरुदेव
भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं जैव धर्म में कह रहे हैं, जो सप्तम गोस्वामी, उसमें दिखाया ये बलदेव प्रभु ही धाम और गिरिराज रूप में प्रकट हुए हैं। सामंजस्य कैसे करें? तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले बिल्कुल ठीक पूछा तूने। बोले देख, प्रकृति मनसो जातो गिरी गोबर धनो महान। प्रकृति अर्थात शक्ति, 3 शक्ति हैं, संबित, संधिनी, ह्लादिनी। संबित अर्थात ज्ञान, इससे क्या होता है? संबंध ज्ञान, जिसके अधिदेवता कृष्ण है। चित क्या है? सत क्या है? संधिनी, जिनके अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु हैं। ह्लादिनी, जिसके अधिदेवता राधा जी हैं। इसलिए शक्ति के मतलब संधिनी शक्ति से प्रकट हुए हैं। संधिनी शक्ति से अर्थात बलदेव प्रभु ही प्रकट हुए, गुरुजी बताया। फिर गिरिराज जी बोला ना, ये तो कंदरा के लीला कैसे होगी? अरे जब पूरा ब्रजमंडल में किसी लीला होती है, जैसे रासुआ वृंदावन में, तब राधा कृष्ण की शर्म नहीं लगा तो इधर शर्म लग जाएगा। इसलिए गिरिराज को क्या लड़की बननी पड़ेगी? ये तो कतई संभव नहीं है। और जो बताया 3 गिरि हरिदास है, भागवत में ही बताया 3 हरिदास। एक उद्धव महाराज जी के लिए हरिदास, युधिष्ठिर के लिए हरिदास, उद्धव के लिए हरिदास वर, और गिरिराज जी के लिए हरिदास वर्ज। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री ये दिखाया। तो गिरिराज का क्या रस है? फिर गुरु जी से आलोचना किया, बोले ढूंढ मिल जाएगा। तब मुझे एक श्लोक मिला भागवत में, बताता हूँ, आप लोग टीका भी देख लीजिएगा। इतने दिन नहीं बता, आप लोगों को बता रहा हूँ। गुरु जी की बात याद आई, गुरु जी बता देना ये बात, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये किसी का भागवत हो, ये आप लोग तो स्मार्ट है, स्मार्टफोन है, देख लीजिए। 11वां स्कंध 12वां अध्याय 8 नंबर श्लोक। केवल नहीं भावे न गोप्पो गावो नगा मृगाः जियन्ने मूढ़धियो नागाः सिद्धा मामियु अंजसा। इस श्लोक में टीका में जो ब्रज के कंदर्प मंजरी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका कर रहे हैं। गोप्पो श्रृंगार रसेन, गोपीगण कृष्ण को श्रृंगार रस में प्राप्त किया। गावो वात्सल्य रसेन, गौ माताएं वात्सल्य रस के द्वारा, क्योंकि कृष्ण जैसे माँ जसोदा रोहिणी का मुख लागे स्तनपान करते, गायों का भी पिया जब ब्रह्म विमल लीला 1 साल चली। इसलिए गावो वात्सल्य रसेन। नागा, नगा अर्थात पेड़, न गा जो गमन नहीं कर सकते, उसमें दिया जमलार्जुनादय क्या है? और नगा गोवर्धनादि पर्वतः सख रसेन। जमलार्जुन आदि पेड़, क्योंकि कृष्ण पेड़ को जैसे सख आलिंगन करते हैं। गुरु जी पूछा पेड़ कैसे सख रस हो गया? गुरु जी देख, एक सोखा से मिलते हैं, आलिंगन करते हैं। ऐसे जब कृष्ण पेड़ में चढ़ते हैं, पेड़ कैसे पकड़ करके चढ़ते हैं। और गोवर्धनादि पर्वता, गोवर्धन जितने ब्रज में पर्वत हैं, सख रसे न, सख रस में कृष्ण को प्राप्त किया। गिरिराज क्या है? सख रस। कौन बोल रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। दिखा गुरु जी बहुत खुश है, बहुत आशीर्वाद दिया। इसमें तो सख रस मतलब क्या है? ये सखा में 5 प्रकार है, उसमें क्या है? मधुमंगल कौन सा सख भाव है? सुबल कौन सा सख भाव है? प्रिय नर्म सखा, उन लोग का भाव कुछ कुछ महाभाव को छूते हैं। इसलिए गिरिराज आदि गोबर ये सब क्या है? सख रसेन। मृगाओपि मूढ़धियो वृंदावनीय तरु गुलमद्दा नागाः कालिद्दा रास रसेन मायमियु। बोलते हैं जो पशु मूढ़धिया वृंदावन के तोरु गुल्म, लेकिन लता के नहीं कहा, लता श्रृंगार रस, क्यों कृष्ण चयन करते हैं, उनको अनुभव होता है। और कालिया ये सब दास रस से कृष्ण को प्राप्त किया। अब मैं थोड़ा बांग्ला में बता दूं, फिर हिंदी में बताऊंगा। बोलते हैं गिरिराज के आमियार तीर्थ महाराज, ওনার নাম ছিল শুভানন্দ ব্রহ্মচারী, আমার নাম ছিল নবীন কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। গুরুদেব যখন নিচে রুমে থাকতেন, ওখানে আমরা গুরুদেবের সামনে ভবিষ্য পুরাণ পড়তাম। ওখানে একটা শ্লোক আছে, প্রকৃতে মনস জাত গিরি গোবর্ধন মহান
प्रकृति के Больше переводчиков. मन से गिरिराज प्रकट हुए, तो हम लोग चक्कर में पड़ गए और ठीक कर लिया राधा जी के। ऐसे ही गुरु जी भी हाँ बोल दिया। तो कुछ दिन बाद सन्यास के बाद मैं गुरु जी से पूछा, आप जो ये आपने ये बोलें जे नारी যখন আপনি অভিষেক করেন তখন তো গিরিরাজকে উপবিত পৈতা পরান, তা মেয়েরা কি পৈতা পরে নাকি? ওখানে যখন আপনাতে যাবেন ব্রহ্মকুমারী একটা মন্দির, মেয়েরা পৈতা পরে। বলি গিরিরাজ কি ব্রহ্মকুমারী নাকি? गुरुजी देव बहुत गंभीर रहते, केवल मुझसे हंसी मजाक कर, किससे करते नहीं, मैं भी मजाक करता। जब से आया मठ में तब से गुरु 31 साल गुरु जी साथ में रखा। भाई तू बहुत मुगलग्गू हो गया, तो ऐसे मैं আমি হাসি মজাক করতাম ওনার সঙ্গে, খুব হাসাতাম ওনাকে। তারপর কি হলো, আর যদি তাই হতো উনি যদি মহিলা তার গিরি রানী নাম হতেন অথবা গিরি রানী মহারানী হতো, গিরিরাজ মহারাজ হতে পারতো না। সংস্কৃতের সূত্র বললাম, মধ্যে দিয়ে সব বুঝবে, আর সবাই লোক বুঝবে না, যারা একটু সংস্কৃত পড়েছে তারা বুঝবে। তাহলে কি হবে? গুরুরাজ বললেন ঠিক আছে, তাহলে বল কি? বলে আপনি বলুন। বলি বিশ্বনাথ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর সপ্তম গোস্বামী বলেছেন জৈব ধর্মে যে বলদেব নিজে স্বয়ং ধাম, গিরিরাজ গোবর্ধন সব নিজে হয়েছেন। যদি বলা হয় কন্দরাজ লীলা হবে, প্রমোদ মদন লীলা, ওখানে কেউ পুরুষ হলে গিরিরাজ যদি পুরুষ হতেন তাহলে রাধাকৃষ্ণ লজ্জা লাগতো। পুরো ধাম তো বলদেব প্রভু রাস করছেন, কাচিত লিম্বতী কাচিত চুম্বতী, তখন লজ্জা লাগছে না? এখানে লজ্জা লেগে যাবে। এরকম গুরুদেব অনেকগুলো পয়েন্ট বললাম। গুরুদেব খুঁজ পেয়ে যাবি, খুঁজ কোথায় বলি দেখ ডাক শাস্ত্রে। ওনারই কৃপাতে শ্লোক পেলাম যে একাদশ স্কন্ধ 12 অধ্যায় 8 নম্বর শ্লোক, কেবলহীন ভাবে ন গোপনাগা কামলিগা। টিকাতে চক্র ঠাকুর বলছেন গোপ্য শৃঙ্গার রসেন গোপীগণ কৃষ্ণকে শৃঙ্গার বা মধুর রস দ্বারা প্রাপ্ত করেছেন। আর গাব বাৎসল্য রসেন গোমাতাগণ বাৎসল্য রসের দ্বারা। আমাদের প্রথম মা হলো গর্ভধারিণী মা, দ্বিতীয় মা কে? গরু। আগে আমরা মায়ের দুধ পান করি, তারপর গরুর দুধ। আর কৃষ্ণও যখন ব্রহ্মবিমল লীলাতে মুখ দিয়ে গাভীর থেকে স্তন থেকে মানে ওদের পালান থেকে দুধ চুষে চুষে খেয়েছেন। নগা যারা গমন করতে পারে না, জমলার্জুন আদি গাছ, আর নগা মানে পাহাড় পর্বত হয়। নগা যমুলার্জনা দয়া গোবর্ধন আদি পর্বতা সক্ষরসেন, ব্রজের গাছ আর পাহাড় মানে হিমালয়, গোবর্ধন পর্বত আরো সব পর্বত, তারা কি সক্ষরসে। তো গুরুদেব জিজ্ঞেসলাম গাছ কি আনা সক্ষরসের হবে? বলে এক সখা দুসরা সখা আলিঙ্গন ভাবে। যখন কৃষ্ণ বা সখাগণ গাছে উঠেন, গাছকে ধরে আকুড় করে ধরে 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 উঠে, এই জন্য আলিঙ্গন সক্ষরসে ন। মৃগা অপি মুরধিয়া হরিণাদি যে পশু, আর কি বৃন্দাবনীয় তরি গুলমার্দা, লতা বলেন না, বৃন্দাবনের ছোট ছোট গাছপালা, এরা কি? আর কালী নাগা কালী আড্ডা দাসরসেনা সব দাসরসে প্রাপ্ত করেছেন। এই জন্য গিরিরাজকে বলেন সক্ষরস। কোন সখা? প্রিয় নর্ম সখা। কারণ প্রিয় নর্ম সখার অধিকার আছে। যখন প্রমোদ মদন লীলা হয় বা অন্য লীলা, তখন কি ওই প্রিয় নর্ম সখার থাকার অধিকার আছে। যেমন উদাহরণ দিয়েছিলাম কালকে, যখন জল ক্রীড়া হচ্ছে, কৃষ্ণ এবং গোপীগণ ছোট অল্প কাপড় পরেছেন, একদম টাইট ফিট, জলের ভিতরে সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে। ওখানে সুবল আছেন, মধুমঙ্গল আছে। এই জন্য এখানে ওখানে যেমন লীলা হোক, ওখানে রাধাকৃষ্ণ কোনো লজ্জার কথা নাই। এই জন্য এখানে চক্র ঠাকুর দেখিয়েছেন, এই জন্য আমি এটা বলে দিলাম, গুরুদেবের আদেশের জন্যই বলে দিলাম। এখন নরসিংহ মহারাজ अब हिंदी में अन्नकूट की महिमा वर्णन करेगा नरसिंह महाराज। এরপরে আমরা এখানে অভিষেকের ব্যবস্থা হবে সকলের জন্য। আর ওখানে গিয়ে কেউ হুড়াহুড়ি করবেন না, আমাদের সন্ন্যাসীগণ অভিষেক করবেন, সঙ্গে থাকবে সত্য হরিদেব প্রাণগোপাল। আর যে মজবুত আছে যেমন, তারা পাহাড়ের ভিতরে কেউ না যায়। চিন্তা করবেন না আমি এত বলো এত সেবা, এরকম না। যখন सब जगह ब्रॉडकास्ट है, लोग सोचेंगे देखो तो ये लोग इतने उच्छृंखल हैं, तो सबको इधर अभिषेक का सुजोग दिया जाएगा।
इसलिए मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं बोलने का क्षमता है, मैं नहीं जाता हूँ, मैं बाहर बैठता हूँ। इसलिए आप लोग को अनुरोध है कि ऐसे न करें। 2-4 लोग के ही सन्यासी लोग अभिषेक करेंगे, 4-5 मठापासी रहेंगे। अब नरसिंह महाराज गोवर्धन की महिमा और अन्नकूट महिमा। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जब हम लोग गिरधारी को भोग आरोपने के लिए जाएंगे, आखिर समान Когда мы отправимся предложить Богу Гирираджу, и по пути обратно никто не должен начать есть прасады. Также никому не нужно это отдавать, да, то есть мы все это распространим здесь, потому что иначе это будет оскорбление, потому что если вы предлагаете пищу, которую уже поели гуру и вайшнавам, то это какое оскорбление. Но это вся пища, она будет помещаться в комнату хранения, и там это потом все оттуда будет распространяться. सबसे पहले मैं मध्य दीक्षा शिक्षा गुरुदेव नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, नित्य लाभ कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मंचस्थ उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोविंद महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत हरिजन महाराज, वैष्णव वैष्णवी सन्यासी ब्रह्मचारी सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। आज बड़ा शुभ दिन है, ये प्रतिवर्ष आता है अन्नकूट महामहोत्सव। वो भी हम लोग को इस गिरधारी गौड़िया मठ में गुरुवर्गों की कृपा से सारे विश्व में ये अन्नकूट महामहोत्सव बनता है, घर घर में मनाते हैं। और हम लोग स्वयं साक्षात वहाँ गिरिराज में बैठ करके वही अन्नकूट महामहोत्सव मनाते हैं। तो ये हमारे अखिल ब्रह्मांडाधिपति वैकुंठाधिपति परम कृष्णचंद्र स्वयं भगवान, जिन्होंने ये अन्नकूट की शुरुआत कराई थी अपने ही परिवार में गड़बड़। अरे स्वयं भगवान होकर के उनके परिवार वाले कई इंद्र की पूजा करे, ये कैसा हो सकता है? ये पुरानी परंपरा थी, ठीक है, परंपरा तोड़ने के लिए बनती है ये तो कहते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि वैकुंठ, अनंत कोटि जीवों के आधार, और वो एक इंद्र, वो तो साधारण जीव है, सात्विक जीव। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो ऊपर के गवर्नर है, उनके अंडर में ये इंद्र देवताओं के अधिपति जो स्वर्ग सम्राट कहलाते हैं। साधारण लोग पूजा करें कोई बात नहीं, किंतु कृष्ण के ही परिवार वाले उनकी पूजा करें, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए कृष्ण ने पहले अपने घर से ही सुधार करना आरंभ कर दिया कि अभी तक तो ठीक है, उनका उस समय में गोधन ही उनका सबसे बड़ा धन था। गायों को चारा कौन देता था? वृष्टि नहीं होगी तो चारा कैसा होगा? इसके लिए वृष्टि के देवता के रूप में सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। किंतु कृष्ण देखते हूँ कि मैं सबका मूल, अगर बड़े लोगों की छोटे लोगों की पूजा करें तो क्या होता है पता है? आयु, धन, यश खत्म हो जाता है। छोटे लोग बड़ों को प्रणाम करेंगे तो उनको मिलता है, और बड़े लोग छोटे को प्रणाम करें तो उनका नष्ट हो जाता है।
तो वही ब्रजवासी और कृष्ण अगर इंद्र की पूजा करने जाए और वो भी प्रेम से किया तो कोई बात नहीं, वो तो जबरदस्ती अहंकार से कि मेरी पूजा करो। Если बोले अच्छा, человек, да, जब ब्रजवासियों को который является более सब богатым, или अन्नकूट, более образованным, इसको कहते हैं более अन्नकूट, более अन्नों का таким успешным, पहाड़, он कूट माने होते हैं पहाड़, более менее ढेर के образованным, ढेर менее लगा करके богатым, अन्न то का тогда ढेर вся लगा его दिया, удача, रोटियों का да, это ढेर всё लगा будет दिया, уходить सब्जियों का от него. ढेर लगा दिया, पूरा सजा Вот दिया। таким же образом, ब्रजवासियों ने जितना बनाया था Кришна не хотел, чтобы было поклонение इंद्र याद Индре. के लिए, И во время इंद्र की पूजा करने के लिए, वो सब लेकर के कृष्ण ने छकड़ों में भरा करके ब्रजवासियों के द्वारा बोले किसकी पूजा करनी है? गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन कौन है? स्वयं कृष्ण ही, विष्णु। ब्रह्मा के भी नहीं, शिव जी की भी नहीं, स्वयं कृष्ण अपनी पूजा कर रहा है। कौन? विष्णु। इसलिए विष्णु तत्व है। अभी बताया महाराज जी ने, शक्ति तत्व है, प्रकृति मनसा जात, वो तो स्वयं विष्णु ही गिरिराज गोवर्धन बने। इसलिए कृष्ण ने उनको इतना सम्मान दिया। यहाँ पर आने के उनके दो कारण है, पुलस्त ऋषि ने लाया और किसी समय में हनुमान जी ने लाया। ये तो लीला है और लीला तो होती रहती है। तो ये लीलाओं में भगवान अपने भक्तों की पूजा कराते हैं। तो यहाँ पर सारे ब्रजवासियों ने सब बनाया, घर में पंच पकवान, पूरी लंबी लिस्ट है वो, सारा बना कर बना दिया। 56 भोग में जो बनता है, 56 का 256, 2056 जितने बनेंगे उतने कम है। सारे मिष्टान्न पकवान जितने प्रकार के हो सकते हैं सारे के सारे बना करके छकड़ों में भविष्य में साधन वही था। गाय और बैल और गाड़ी होती थी, इसको छकड़े कहते हैं। छकड़े में भर भर के गिरिराज जी में लाया, गिरिराज जी को भोग लगाया। कृष्ण ने स्वयं भोग लगाया। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे, और उसको स्वयं कृष्ण ने भोग लगाया और स्वयं कृष्ण जी प्रकट होकर सारा का सारा ले लिया। अरे ब्रज देखिए ये क्या हो गया, हो गया भगवान सब खाएंगे तो हमारा भगवान सब खाएंगे तो हमारे लिए क्या? तो कृष्ण ने सारा ग्रहण किया। भगवान को देने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। अदत्त दानात भवेत् दरिद्री, दरिद्री भावात करोति पापम। जो दान किया है उन्हें पूर्वजन्म में उनको मिला, इस जन्म में जो नहीं किया भीख मांगते हैं। महाभारत में से श्लोक है, अदत्त दानात भवेत् दरिद्री, दरिद्री भावात करोति पापम। दरिद्र बने तो पाप करेंगे, पेट के लिए भी चोरी चपटी करना पड़ता है। और पुनरपि पापम पुनरपि दरिद्री, पुनरपि पापम पुनरपि दरिद्री। लगाए संसार में देख रहे, प्रत्यक्ष देखो प्रमाण, जो दिया है पूर्वजन्म में उनको मिला, इसमें नहीं मिला नहीं तो करते रहो। तो गिरिराज जी को देने से, अब भगवान को देने से कोई कमी पड़ेगी? अरे वही देने वाले हैं और उनको नहीं देते हैं। हाँ हम नहीं देंगे। ब्राह्मण थे ना मथुरावासी, मांगा जाओ जाओ, कृष्ण ने भेजा, कृष्ण बलराम ने जाओ ब्राह्मण के पास। नहीं हम नहीं देंगे। अच्छा स्वयं भगवान माने तूने दे, जिसको देने वाला है उसको मना कर रहे। जो संसार का विश्वभर है, विश्व का भरण पोषण करता है, उसको मांगने से उसको मना कर देते हैं लोग। ऐसे दरिद्र अभागी। तो ऐसे लोगों से कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को कहा चलो गिरिराज जी की पूजा करना। छकड़ों में भरा भरा कर लाके गिरिराज जी को भोग लगाया, जैसे माधवेंद्रपुरी ने लगाया था। सारे ब्रजवासियों ने एक एक दिन बांट के लिया, जिस समय गोपाल जी प्रकट हुए थे। ब्रजवासी बोले बड़ा जता से बड़े बड़े सेठ, मथुरा में कहाँ से सेठ लोग सेठों को लाके बिठाए पता है? जिस समय में 5000 साल कृष्ण जाने के बाद यहाँ पर ये मथुरा वृंदावन उजाड़ हो गया था। हाँ तो यहाँ पर आके परीक्षित महाराज ने या बद्रीनाथ को राजा बनाया और खुद वो पांडवों ने परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राजा बनाया। तो यहाँ पर आए तो उजाड़ था, तो वहाँ से हस्तिनापुर से बड़े बड़े सेठों बनियों को ला करके मथुरा में बसाया गया और उनके साथ बंदरों की भी लाया। बंदरों की बिठाई, बंदर भाग गए तो कितने भगाओ यहाँ से। तो मथुरा में बंदरों को सेठ इसलिए कहा वो माधवेंद्रपुरी कथानक में कि मथुरा में जा सके तो बड़े बड़े सेठ, सेठों की मथुरा है, बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं, धनी मानी रहते हैं। उन्होंने गिरिराज जी का जिस समय माधवेंद्र प्रकट किया तो उसी द्वापर में जैसा कृष्ण ने गिरिराज जी को अन्नकूट कराया था, वैसा ही माधवेंद्रपुरी ने भी ऐसे ही अन्नकूट कराया। गोपाल जी प्रकट हुए थे ना जतिपुरा के ऊपर में। तो बीच बीच में रिमाइंड करने के लिए भगवान भी अपने भक्तों के द्वारा ऐसी लीला करवाते हैं।
तो इसलिए अन्नकूट में सारे ब्रजवासियों ने, क्योंकि ब्रजवासी कृष्ण के जैसे प्रीति करते हैं वैसे कृष्ण भी ब्रजवासियों की प्रीति करते हैं। भगवान और भक्तों की प्रीति आपस में एक दूसरे को, एक तरफा प्रेम नहीं है, दोनों तरफा है। जैसे ब्रजवासी कृष्ण को प्रीति करते हैं ऐसे कृष्ण भी उनके लिए प्रीति करते हैं। जैसे सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन अन्नकूट चल रहा था, माधवेंद्र प्रकट किया, वहां पर ऊपर रख दिया और कहा कि सब हजारों गाय बांध दी और सब एक एक गांव ने एक एक दिन बांट लिया। अभी कितने ब्रज में गांव है, एक एक गांव ने एक एक दिन, हम हमारी तरफ से आज भंडारा, हमारी तरफ से आज भंडारा, रोज गिरिराज गोवर्धन से देखो यहाँ पर आके बाहर दिल्ली कहाँ से आके लोग रोज भंडारे लगाते हैं। यही प्रथा है, तो बांटो, जमा करने से कुछ नहीं होगा, जमा करने से हो जाए तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा बाद में तुमको और वो तुम लोग भोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये संपत्ति तो रहेगी नहीं सदा। आए थे नंगी, जाएंगे नंगे, भेजेंगे भगवान। और यहाँ पर कोई इकट्ठा किया, अगर जबरदस्ती किया, घर मकान बांधा तो उसको भी कुर्क करा लेंगे और दंड भी दिलवा देंगे अलग से, क्योंकि उसको कमाने के लिए, जमाने के लिए उसको क्या क्या उल्टा सुल्टा किया होगा तुमने, उसका दंड भी मिलेगा वहाँ पर। इसलिए भगवान ने दिया है, भगवान के लिए दिया है, भगवान के भक्तों के लिए दिया है। तो सारे ब्रजवासियों ने अपना एक एक गांव ने एक एक दिन बांट करके पूरा रोज भंडारा चलता था। तो कहते हैं उस समय वो कृष्ण ने कैसा किया होगा, कृष्ण के समय ब्रजवासियों ने कैसा किया होगा। तो ये अन्नकूट है, ये गिरिराज महाराज साक्षात ब्रज के कृष्ण के समय से अभी हम लोग वर्तमान में क्या देख सकते हैं, आंखों के द्वारा दृश्य गिरिराज महाराज यमुना, दो चीजें बची है, बाकी सब तो काल के प्रभाव से चले जाते हैं। तो साक्षात गिरिराज ये ब्रज के देवता, ब्रज के राजा, और उनको सब सारा देखो मुड़िया पुनों में कितना भीड़, 40 वो 2-3-4 किलोमीटर बाहर में गाड़ियां खड़ी करके सब, तो किसकी महिमा है, वो सबके अंदर प्रेरणा दे करके सबको खींच के लाते हैं। हम लोग चिट्ठी निमंत्रण देते हैं क्या किसी को, आ जाते हैं जब भगवान अंदर प्रेरक है, उर प्रेरक, वो अंदर बैठ के सबके अंदर में प्रेरणा दे करके सबको बुला लेते हैं। तो इस प्रकार गिरिराज की महिमा है ये। कृष्ण ने जिसको इतना सम्मान दिया, 7 दिन तक अपने हाथ में उठा करके, 7 दिन 7 रात 7 दिन तक अपने हाथ में उठा करके उनको कहा जाओ जगत पूज्य हो जाओगे तुम। हनुमान जी ने रख दिया यहाँ पर, तब हनुमान जी को गिरिराज बिगड़ गया, मुझे रामचंद्र जी चरणों से वंचित करे, बोले नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु गिरिराज महाराज जी, आपको तो रामचंद्र प्रभु से आपको इतने, अगले अवतार में जब कृष्णचंद्र आएंगे आपको इतना सम्मान देंगे, आपको जगत पूज्य करा देंगे, आपको स्वयं अपने हाथों पे उठा लेंगे। तो इस प्रकार ये गिरिराज जी स्वयं कृष्ण हस्तपाद पंकज भृंगाय मानम, ये सनातन गोस्वामी लिखा है हमारे श्लोक। 7 दिन 7 रात तक कृष्ण ने अपने हाथों पे जिनको उठा ले गया, तो क्या साधारण है गिरिराज महाराज। दिखने में तो सब मिट्टी दिखते हैं हम, किंतु उस मिट्टी में और उस पत्थर में, वृक्ष में हर एक भगवान का वास है, भगवान का वास है। पर पत्थर में भी, हाँ पहले पहाड़ उड़ते थे, हिमालय और ये सारे द्रोणाचल के पुत्र ये गिरिराज। तो इसलिए ये गिरिराज जी कोई साधारण नहीं, स्वयं विष्णु ही बने हैं। अरे ब्रह्मा पत्थर बन सकते हैं, शिव पत्थर बन सकते हैं, विष्णु पत्थर बन सकते हैं। ये ब्रज में कण कण रज रज, उसका तो मिट्टी का ढेला तो ज्यादा टाइट बना से उसके ही तो पत्थर बनते हैं। तो गिरिराज ये पहाड़ बन के वो भी फलमूल कंदरे, और इतना उन्होंने अपने कृष्ण की भी सेवा की, इसलिए उनको हरिदास वर्य कहा गया। हरिदास वर्य, हरिदास वर और हरिदास वर्य, हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ, जो अति उत्तम सेवा करेगा, उनको अपने गौओं को और सखाओं के साथ में, गोपियों के साथ में कृष्ण निहा लीला की, उसके अंदर राधा कुंड श्याम कुंड है। इसलिए कृष्ण की अंतिम माध्यान्हिक लीला ये राधा कुंड श्याम कुंड में होती है। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन में भी राधा कुंड श्याम कुंड। इसलिए अन्नकूट यही होता है। और हम लोग का कितना सौभाग्य है, न जाने हम लोग पूर्व जन्म में कितनी सुकृति आई, से कुछ किया होगा तभी तो यहाँ कौन आता है संसार में, पड़े बड़े कितने लोग। अरे कुछ ना कुछ तो जरूर भगवान की कृपा है, गुरु वैष्णव की कृपा है। और हम लोग को ये सुनते सुनते तो कभी ना कभी दिल में ठोकर पड़ेगी कि सचमुच हाँ गिरिराज जी की कितनी महिमा है, गिरिराज जी की कितनी कृपा है कि हमको यहाँ पर ये गिरिराज में बैठ करके अन्नकूट में सेवा करने का, अन्नकूट में अंश ग्रहण करने का हमको सौभाग्य मिला। ये गिरिराज जी की कृपा है। और गिरिराज जी हमारे गुरु परंपरा, और यहाँ पर गुरु जी ने हमारे मठ बनाया गिरिराज गोवर्धन में, यहाँ पर बना के सारे संसार के लोगों को आ जाइए, बिना बोला कि हमारा स्थान है ये गिरिराज गोवर्धन में, अन्नकूट बना करके, अन्नकूट मना करके हम भी अपने जीवन का कल्याण करें। अभी हम लोग यहाँ पर गौ पूजा और ब्राह्मण पूजा करेंगे बाहर में, क्योंकि आज अन्नकूट
गो पूजा का दिन है, तो हम लोग बाहर में अभी यहाँ पर गाय बांधी हुई है। यहाँ के बाद में हम बाहर जाके गो पूजा भी करेंगे। अभी इसके बाद माधव महाराज जी कुछ बोलेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे Я сейчас ничего не скажу, потому что время нас ждет. Приведите корову с теленком, и мы будем поклоняться корове с теленком. Нельзя, чтобы много людей вышли, потому что иначе корова, она то есть будет волноваться и злиться. Поэтому не нужно подходить близко к корове, чтобы наблюдать это снаружи. То есть не нужно ходить к корове, пытаться ее тронуть, и она может вас ударить. После того, как преклонение корове закончится, здесь абхишеку проведем во храме. И поэтому все подходите в линию и совершите абхишеку.